डॉक्टर नबील हैं और जो बल्दीश है वो बार बार आपको ये कह रहे थे एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। तो ये तीनों ये जो तीन चीज़ें जो हम बताते रहते हैं आपको फिटनेस के लिए है और इसके अलावा आपके फूड में क्या है और इसके अलावा और बहुत सी लाइफस्टाइल की जो चेंजेस हैं वो बताते रहते हैं। तो अगर आपको डांस भी नहीं, हम आपको डांस भी दिखाते हैं इस प्रोग्राम में, योगा भी दिखाते हैं, अगर ये भी दोनों चीज़ें आपको पसंद नहीं है, घर में आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, तो लेट्स टेक यू टू a gym where our fitness instructor Imran, he'll show you how to use gym facilities effectively. Thanks, Yasmin. Yeah, hi everyone. My name is Imran and I'm going to be your personal trainer for the next 5 minutes today. So what we're actually going to do today is we're actually at our local gym. What we need to do, we need to find ourselves a nice fit ball. A fit ball is a nice round ball, what you probably see lying around in the gym. What we're going to do, we're going to do some great exercise on this Auntie G. So पहले तुसी काम कर दियो ना, exercise कर देना, तो आड़ी body भी fit नाल हो जाएगी अब. So this is very important to obviously get yourself going, working those muscles, what you do on a daily basis. So Auntie Ji, पहले तुसी बैठे होंदे ने ना सोफा उत्ते ते उठदे ना लत्तां तुहाडियां दर्द होंदियां ना, आ तुहाडियां दर्दां भी तुहाडे ओ नसा देगियां. अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ने तो तुसी बड़े खुश होएगे एक्सरसाइज करन ते. So पहले शुरू होइए. First exercise, what we actually going to do is actually going to be working on your chest. Great exercise to actually help you when you're pushing the door forward. Uncle G, when you're getting angry, Auntie G's getting you angry and you want to push that door forward, and this is the exercise to actually get it a bit stronger. So what we're going to do, we're going to actually get hold of the ball. Okay, ball, the key thing is we need the ball and we need a wall. So find your nearest wall and we're going to make our way to the wall. Okay, what you're actually going to do at this point is you're going to grab your hands onto the ball, nice and slowly. Keep your feet slightly further back. Keep your abdominals nice and tight. At this point, you're going to slowly come forward and slowly come back. Slowly forward and slowly back. At this time, Auntie Ji, तुहाडी ऊपर वाली बॉडी थोड़ी दर्द भी होंदी भी है, पर फिक्र ना करो, लगे रहो. Nice, looking good. Nice and slowly. Nice and slowly. Remember to, its tempo is like 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nice and slowly, looking good. Okay, after this, what we're going to do, we're going to actually move you on to another exercise, but we're actually going to stay with the wall because the wall is very important at this point. What we're going to do, Auntie, is we're going to work those latta padi yani dard hondiyan, par tusi sofa te bande te uthdiya aate tuadiyan latta nu strong karege, strong. So, what we're going to do is we're going to keep our lower back on the lower ball at the end. At this point, you're going to keep your feet slightly wider apart. Find a nice spot. Think about that spot there as your son's graduation. Just keep looking at that spot and keep smiling. And while you do, slowly go down and slowly come up. Very good. Slowly down and slowly up. So you're looking at least to start probably about 10 to 12 times. Nice and easy. Very good. Now your lattans are hurting. Lattan tuadiyan badiyan dard bhi hondiyan pena. But fikr na karo. Now we're going to move on to the next body part. Now what we're going to do is we're going to work on the back muscles. And you'd chop in and you need to pull something out of the back, the back bonnet. Now this is going to actually help those muscles to actually get them stronger. So what you're going to do, we're going to start off with, say, a light dumbbell. So probably find something which is probably 1 or 2 kilos. What you do, you're going to sit on the ball nice and slowly. Get hold of that dumbbell. You're going to slowly come forward, nice and comfortable. Take that ball dumbbell to your mid chest. At this point, you're going to slowly take that back to a comfortable point and slowly forward just to your mid chest. Nice and easy. This is working those back muscles. You're feeling good now. We are strengthening those joints, those muscles. And 1, 2. Nice and easy. Acha. Okay, what we're going to actually show you now is we're actually going to move on to working your core, your abdominals. Auntie G, very good, obviously, working those core muscle groups. What we do, we need to find the wall again. Very good combination, okay? At this point, you're going to keep your hands there, nice and comfortable. Keep your abdominals nice and tight.
Just keep it there, core nice and tight, and just hold there. And slowly what you can do, probably lean into it a bit, keep that core nice and tight. Okay, you want to hold it there from anything from say 10 to 15 seconds. 10 to 15 seconds, just hold it there, keep that belly button nice and tight. Okay, brilliant. We're going to come up there. Okay, hopefully these exercises have been very beneficial. Today we're going to actually leave it as this and hope you enjoy. Just go in the gym, relax, find yourself a ball, find yourself a dumbbell and wall, and I will see you next time. Thank you, Imran. Yeah, what a fun way of actually learning some gym steps, especially when you are with Imran. और आज बहुत सी लेडीज़ ने फ़ोन भी हमें किया था और उन्होंने बताया कि उनको किसी की टांगों में दर्द है या कुछ है. तो अगर जिम आपके कहीं करीब है तो आप ज़रूर ये सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं. बहुत जेंटल है लेकिन वेरी इफ़ेक्टिव. जी, अब बात होगी हमारी जो है हमारी साइकोथेरेपिस्ट, जैसे आपको पता है इन हाउस हैं हमारी पुष्पिंदर चौधरी, डॉक्टर पुष्पिंदर चौधरी. जी हाँ, साइकोथेरेपिस्ट की PhD हैं. उनसे हम बात करेंगे और हमारा जो आज का क्वेश्चन है यानी आज का आपका जो लेटर है वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन कोई भी बात अगर आपको जिस बारे में हम आज बात कर रहे हैं, कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा. लेकिन सबसे पहले आइए वेलकम करते हैं पुष्पिंदर. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन. आपसे ये कहेंगे स्पेशली ये लॉन्ग वीकेंड है, सब लोग चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, इधर चलें, लेकिन आप इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि आपको मालूम था कि आज आपको यहाँ पर होना है. जी, थैंक यू. नो, थैंक यू. आई लाइक टू बी हियर. थैंक यू. अच्छा, तो लेटर मैं लेती हूँ और आप हम अपने व्यूअर से भी कहेंगे तैयार रहिए. अगर आपके पास कोई भी इसके बारे में कोई सोल्यूशन हो, कोई आपका एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करें. अच्छा, लेटर है कि हाई, माई हस्बैंड इज़ इन हिज 50s and had a heart attack a couple of years ago and the doctors advised him to stop smoking as they said it would be detrimental to his health and his life. He used to take 20 cigarettes per day and now he has reduced it to 12 or 13. On top of that, he has a habit of chewing gutka and pan and he is addicted to it. Even after the warning he has been given by the doctors, he cannot manage to stop. I have heard addiction is a psychological problem. What can your psychologist advise on how to convince my husband to stop smoking? देखिए, उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने तो कह दिया है, वो डॉक्टर्स की तो बात ही नहीं मान रहे. तो अब आप बताइए कि कोई साइकोलॉजिकली हाउ कैन वी जस्ट कन्विंस हिम? आई थिंक कि जब तक उनके हस्बैंड अपने आप ये नहीं सोचेंगे कि उनको अपनी हेल्थ की केयर है, कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई भी चीज़. सो सबसे पहले मेरे ख्याल में उनको ये उनके हस्बैंड को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो भी कुछ है उनके लिए कह रहे हैं और उन्हें अपने आप को अच्छा करने, इस हार्ट अटैक के बाद अच्छा करने की ज़रूरत है. और जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम उनकी है और सिर्फ वो ही इसकी हेल्प कर सकते हैं. जैसे वो अर्लियर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये जो बॉडी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी है और सिर्फ हमारी है. कोई भी उनकी वाइफ वो वरी कर सकते हैं पर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते. नहीं, लेकिन ये है कि क्या ये दो टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं. एक जो होती हैं कि वो एडिक्टिव पर्सनालिटीज़ होती हैं, यू नो, उनकी स्ट्रॉन्ग विल हो ही नहीं सकती. वो उनकी थोड़े दिनों तक रहती है, उसके बाद दे गो बैक टू देयर नॉर्मल सेल्फ. या लेकिन क्या ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है. एडिक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं, पर मोर इम्पोर्टेंटली उनको अपनी जो सेहत है उसके बारे में सोचना चाहिए. राइट, एडिक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं और उनके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प भी मिल सकती है, पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि जो if he is willing to change, he is willing to change. और अगर आप willing to change, आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, then there's lot of help
available out there. लेकिन बहुत से लोग हैं जो वो ये कहते हैं कि भाई अप्रोचेस दो तीन तरह की हैं कि एक तो है कि यू जस्ट गो कोल्ड टर्की, बिल्कुल ही एकदम आपने फेंक दिया, आज बिल्कुल मैंने फेंक दिया, या मैंने इसके बाद देखना ही नहीं है सिगरेट्स को, और उसकी कहीं डब्बी हो पड़ी हो कुछ भी। और कुछ हैं वो कहते हैं कि ग्रेजुअल जो है वो आप उसको करें, कम करते जाएं, एंड देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू जस्ट से ओके यू डोंट नीड इट, योर बॉडी डजंट नीड इट एनीमोर। तो ये क्या, कौन सी अप्रोच आप समझती हैं कि इफेक्टिव है ज़्यादा? जो एडिक्शन है वो भी एक बीमारी है। ये ऐसे नहीं है कि जस्ट विल पावर इज इम्पोर्टेंट। उसके आपकी जो बॉडी है वो जब उनको ये सिगरेट्स, टबाको और कोई भी अल्कोहल ड्रग है, योर बॉडी इज सो यूज्ड टू इट, अगर आप नहीं लेते तो यू गेट विड्रॉल सिम्टम्स। सो ये भी एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और वो इलाज कैसे होता है ये हम इंडिविजुअली पर डिपेंड करता है। आज ये एक हमारे स्टूडियो में मक्खी आ गई है। आई थिंक गर्मियाँ आ रही है ना, आज पहला दिन है समर का स्टार्ट, स्प्रिंग स्टार्ट हो गई है ना। हाँ, ये मक्खी हमें बता रही है कि अब चेंज हो गया टाइम, अब गर्मियाँ आने वाली हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इलाज है हर एक इंसान के लिए डिफरेंट है। अच्छा। कई लोग एकदम छोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी विल पावर है और वो अपनी जो एडिक्शन है, जो बॉडी की कॉल है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार तो आप इतना डर जाते हैं कि आप छोड़ देते हैं। अच्छा, जब ये बातें सुनते हैं कि इससे हाँ कि आपकी लाइफ जो है वो कहते भी यही है कि लाइफ आपकी जो है वो 12 साल कम हो जाती है जो स्मोकर्स होते हैं एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज, इट शुड एक्चुअली पुट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर माइंड कि भाई ये मेरे 12 साल कम कर रहा है, ये जो मैं जिसको मैं रोज अपने पेट में डाल रहा हूँ, अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ। जी, या तो एक तो ये है कि वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम वो इस बात से डर जाते हैं कि भी हाँ वाकई हार्ट अटैक ही। अगर उन्होंने ये कम किया है तो मुझे लग रहा है कि कहीं उनकी विल है कि वो इस चीज़ पे कंट्रोल करें। 20 से उन्होंने 12 पे तो आ गए हैं। हाँ, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सम सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग और क्लिनिक जहाँ जाके अपने ही जैसे लोगों, वो जो क्विक लाइन्स वगैरह हैं, कई मेरा ख्याल है कई चैरिटीज भी काम करती हैं, क्विक लाइन है और ऑल दोस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और डिफरेंट काइंड ऑफ सिगरेट्स भी अब तो निकली हैं, वो जो ई सिगरेट्स वगैरह हैं। लेकिन ये सिगरेट्स भी जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल है, उसका भी कोई ये नहीं है। कई कहते हैं कि ये एक और एडिक्शन हो जाती है, फिर ये सिगरेट जो ले रहे हैं तो वो ई सिगरेट पे ही फिर पड़ जाते हैं, तो उसमें भी तो थोड़ी बहुत निकोटीन है ना। है, उसमें ये है कि आप एक चीज छोड़ के दूसरी को पकड़ लेते हैं और जो आपका रूट कॉज है वो आप टैकल नहीं, हाँ वो आप टैकल नहीं करें। और दूसरी बात ये है कि जब वो क्लिनिक में जाते हैं, नॉट ओनली वो आपको ये बताते हैं कि भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करते हैं। क्या चीज़ है जब आप सिगरेट पीते हैं, आपको क्या प्लेजर मिलता है। अच्छा, चले हाँ, नहीं ये तो हम बात करते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई भी एक्सपीरियंस है या कोई भी आप समझते हैं, आपने देखा है या आपके हस्बैंड ने अगर छोड़ा है या आपकी जो भी जानने वाले हैं उनमें से किसी ने इसको छोड़ा है, स्मोकिंग को, और कैसे छोड़ा है, तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। और हमें वैसे भी अगर आपने कोई भी बात बतानी हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो या कोई लेटर अगर आपको लिखना हो अपने इश्यूज़ के बारे में, तो info@yasminqureshi.com आप हमें भेज सकते हैं ईमेल। और अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं 0203 6300 610 but after this short break.